Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss Maharashtra State Board 8th Standard General Science, Chapter 1 Living World and Classification of Microbes. So let's begin with the discussion. Before going to start with the chapter, we will discuss few questions here. What is the hierarchy for classification of living organisms? Second question, who invented binomial system of nomenclature? Third question, which levels of hierarchy are considered while writing the name in binomial nomenclature? So, we will discuss them one by one. Let's start with the first question, hierarchy of classification of living organisms. Hierarchy is the word which means that the categorization of particular things by step by step. Means for example, अगर जैसे कि हम फैमिली ट्री ड्रॉ करते, फैमिली ट्री हम ड्रॉ करते हैं, उसमें हम पहले ग्रैंडफादर्स नेम लिखते हैं, देन फादर्स नेम, देन फादर्स एंड मदर्स नेम, देन और नेम्स आर कमिंग अंडर दैट ट्री. सो ये इस टाइप का जो कैटेगराइजेशन होता है उसको कहते हैं हायरार्की. Scientific definition of hierarchy here for biological hierarchy, it is the process of arranging various organisms into successive levels of the biological classification, either in a decreasing or an increasing order from the kingdom to species and vice versa. So kingdom से जो steps जो पहली step जो होगी हमारी वो kingdom होगी और last step जो होगी वो species होगी. So like this, have a look at the hierarchy of the classification of living organisms. So जो biological hierarchy जो होता है यानी कि classification of living organisms होता है उसको कहते हैं taxonomical hierarchy. Then this taxonomical hierarchy is divided into two categories, that is broader categorization and the binomial nomenclature. So binomial nomenclature we will discuss later. Here we will discuss broad categorization. So look at the broad categorization. This broad categorization further divided into 7 steps like kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. So this is the hierarchy of the classification of living organisms. Means they will be divided into these 7 steps, like from the kingdom to species or species to kingdom. It depends upon us that हम ऑर्डर इसका क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. पहले स्पेसीज कंसिडर कर सकते हैं, जिनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम एंड देन किंगडम. सो इट डिपेंड्स ऑन अस. सो दिस इज द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. So let's discuss the second question, who invented binomial system of nomenclature? Before going to know about the scientist, let me introduce what is binomial. Bi means two, nomial means names. So here two names are joined together to form a single name, that is called as binomial. So binomial system of nomenclature which is invented by, look at the photo of the scientist. His name was Carl Linus. Carl Linus is the scientist who invented binomial system of nomenclature. So Carl Linus is a Swedish botanist who invented binomial system of nomenclature. His system of arranging species into group is called Linnean hierarchy. अब जो जिस सिस्टम से उसने स्पेसीज को अरेंज किया था उसको कहते हैं लीनियन हायरार्की. एंड हिज वे ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स, और जिस टाइप से उसने ऑर्गेनिजम्स को नाम दिए थे, नेम्स दिए थे, उस नेमिंग सिस्टम को कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर. ओके. देन ही क्लासीफाइड मोर देन 11,000 स्पेसीज. उसने 11,000 से ज़्यादा स्पेसीज, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्पेसीज को क्या किया था, क्लासीफाई किया था बाय द यूजिंग हिज बायनोमियल नोमेनक्लेचर एंड लिनियन हायरार्की. सो दिस वाज द वर्क ऑफ कार्ल लिनस.
who invented the binomial system of nomenclature. So now come to the third question: which levels of hierarchy considered while writing the names in the binomial system of nomenclature? As we seen in the previous slide, there are 7 levels of the hierarchy, that are kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. So these are the 7 levels. अब इन 7 लेवल्स में से कौन से लेवल्स जो है बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में नेमिंग के वक्त यूज़ होते, वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. सो द बायनोमियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 names written in Latin. Okay. Second one, the first name in binomial nomenclature is the genus of the organisms. अब ये फर्स्ट नेम जो रहेगा, यानी कि मैंने कहा बायनोमियल क्या है कि 2 नेम्स को क्या किया है, ज्वाइंट किया है. तो वो 2 नेम्स कौन से रहेंगे? फर्स्ट नेम रहेगा जीनस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हायरार्की के लेवल में जो जीनस था, तो जीनस में जो नाम होगा वो पहले आएगा. देन द सेकंड नेम इज स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सेकंड नेम उसको जो जॉइंट होगा वो उस ऑर्गेनिजम्स का क्या रहेगा, स्पेसीज रहेगा. देन फर्स्ट वर्ड इन द साइंटिफिक नेम ऑलवेज कैपिटलाइज्ड व्हाइल अदर्स आर स्मॉल. जो साइंटिफिक नेम हम जो भी ऑर्गेनिजम्स का लिखेंगे उसमें कुछ रूल्स है, जैसे कि फर्स्ट नेम जो रहेगा हमेरा, उसका फर्स्ट लेटर जो रहेगा वो क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा. जैसे कि जनरली हम लोग अपना भी नाम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा और सारे लेटर्स बाद में क्या रहेंगे, स्मॉल रहेंगे. द नेम्स आर ऑलवेज इन इटैलिक्स और अंडरलाइन. और जितने भी साइंटिफिक नेम्स रहेंगे ऑर्गेनिजम्स के, वो या तो इटैलिक फॉन्ट में रहेंगे या तो अंडरलाइन फॉन्ट में रहेंगे. देखो यहाँ पर ये इटैलिक्स है, यानी कि थोड़े झुके हुए होते हैं, और अंडरलाइन फॉन्ट्स जो होते हैं वो अंडरलाइन होते हैं, या तो ये इस फॉर्म में रहेंगे इटैलिक्स फॉर्म में या तो अंडरलाइन फॉर्म में रहेंगे. एग्जाम्पल, द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस इज, ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होमो सैपियंस होता है. क्या होता है, होमो सैपियंस. अब होमो सैपियंस में होमो जो है वो क्या है, जीनस है, और सैपियंस क्या है, स्पेसीज है. तो ये दोनों को कनेक्ट करके एक सिंगल नेम बनाए, दैट इज़ होमो सैपियंस, विच इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस. सो इस तरीके से बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वर्क करता है. पहले हम क्या करेंगे, जीनस लेंगे ऑर्गेनिजम्स का, देन स्पेसीज ऑर्गेनिजम्स का, ये दोनों को ज्वाइन करके या तो उसको इटैलिक्स फॉन्ट में या तो अंडरलाइन फॉन्ट में हम उसको क्या करेंगे, राइट करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ साइंटिफिक नेम. सो और यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा कि होमो सैपियन इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस, and the homo is the genus and sapiens is the species of the humans. So here we finished with the questions. Now let's start with the chapter. First topic is biodiversity and need of classification. So to understand biodiversity and need of classification, we should know about the history. So in the history, if we see that Carl Linnaeus in 1735 divided living world in 2 kingdoms, Vegetabilia and Animalia. कार्ल लिनस ने 1735 में लिविंग वर्ल्ड को 2 ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड किया था, दैट इज़ वेजिटेबलिया और एंड एनिमलिया. सो सबसे पहले कार्ल लिनस ने क्या किया, पूरे लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम्स में क्या किया, डिवाइड किया है, दैट इज़ वेजिटेबलिया एंड एनिमलिया. वेजिटेबलिया में सारे प्लांट्स और वेजिटेबल्स इसमें आ गए, और एनिमलिया में जितने भी जो एनिमल्स है इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वो सारे एनिमलिया में उसने क्या किया था, कैटेगराइज किया था. देन हेकेल in 1866 considered 3 kingdoms, that is Protista, plants and animals. After Carl Linnaeus, हेकेल ने क्या किया था, 1866 में उसने 3 किंगडम सिस्टम क्या किया था, कंसिडर किया था, जिसमें एक किंगडम प्रोटिस्टा था, दूसरा प्लांट्स एंड तीसरा एनिमल्स. प्रोटिस्टा में जो है लाइक बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो प्रोटिस्टा में इंक्लूडिंग होंगे, जो यूनिसेलुलर होंगे
और देन प्लांट्स में सारे वेजिटेबल्स एंड प्लांट्स आएंगे, देन एनिमल्स में सारे एनिमल्स आएंगे लाइक ह्यूमंस आल्सो इंक्लूडेड। आफ्टर हेकेल इन 1925 चैटन क्रिएटेड टू ग्रुप्स। अब हेकेल के बाद चैटन ने क्या किया, दो ग्रुप क्या किए उसने बनाए, ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सो वी विल डिस्कस इट लेटर। सो चैटन ने कंसिडर किया था सेल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से उसने दो ग्रुप में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या किया था, डिवाइड किया था। दैट इज फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोट्स एंड सेकेंड इज यूकैरियोट्स। आफ्टर चैटन इन 1938 कोपलैंड डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 4 किंगडम्स। अब कोपलैंड ने क्या किया था, 4 किंगडम सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उसने किंगडम्स बनाए थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि हेकेल ने 3 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, तो यहाँ पर कोपलैंड ने 4 किंगडम सिस्टम क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें एक किंगडम था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो दिस इज द वर्क ऑफ साइंटिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्दर, व्हाई डू वी नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? हमको क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है? इट्स अ सिंपल थिंग। अकॉर्डिंग टू 2011 census, around 87 million species of living organisms are found on the earth, including land and sea. अब जैसे कि अकॉर्डिंग जो सेंसस होता है, जो काउंटिंग्स होती है, तो काउंटिंग के हिसाब से 87 मिलियन स्पेसीज़ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। सो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जिनमें इनके जो आदतें होती है, तो ये क्या होती है, डिफरेंट होती है। हर एक की नीड अलग होती है, हर एक का लाइफस्टाइल अलग होता है, हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनको एक साथ तो हम लोग स्टडी नहीं कर सकते। तो उनको स्टडी करने के लिए, इतने वास्ट नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए, इट इज़ एसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू द ग्रुप्स। इसके लिए उनको क्या करना पड़ा, हमको ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ा, यानी कि उनको क्लासीफाई करना पड़ा, यानी कि प्लांट्स को अलग से रखना पड़ा। फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो छोटे छोटे, जो हमको नेकेड आई से हम देख नहीं सकते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अलग रखना पड़ा। फिर जो एनिमल्स है, एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप में रखना पड़ा कि हमको आसानी से ईजीली वी कैन स्टडी देम। सो दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स into groups and subgroups is called biological classification. So ये सारे एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने को ही कहते हैं, हम क्या कहते हैं उसको, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज Whittaker's मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। एज वी नो, after Copeland, Whittaker divided the living organisms into the 5 kingdom system. So this is the picture of famous scientist Robert Whittaker. Robert Harding Whittaker, who born in 1920 and died in 1980. He was an American ecologist. In 1969, he divided living organisms into 5 groups. इसने क्या किया था, रॉबर्ट हार्डिंग विट्टेकर ने जो लिविंग वर्ल्ड को 1969 में 5 ग्रुप में, यानी कि 5 किंगडम्स में उसने क्या किया था, पूरे लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड किया था। इसीलिए इसके सिस्टम को, विट्टेकर्स मेथड को 5 किंगडम सिस्टम भी कहा जाता है। जैसे कि कोपलैंड ने कितने किंगडम में किया था, 4 किंगडम में, पूरे लिविंग वर्ल्ड को 4 किंगडम में उसने डिवाइड किया था। वहीं पर विट्टेकर का जो मेथड है वो 5 किंगडम मेथड कहते हैं उसको, 5 किंगडम सिस्टम है, जिसमें उसने 5 अलग अलग कैटेगरीज में पूरे लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड किया था। सो विट्टेकर ने कुछ क्राइटेरियाज कंसिडर किए थे टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. So Whittaker considered
फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन। अब उसने किस क्राइटेरिया, किस बेसिस के ऊपर लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम सिस्टम में क्लासीफाई किया था, वो क्राइटेरियाज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो दीज आर दी 5 क्राइटेरियाज। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। अब जो मैंने जैसे बताया था कि सेल स्ट्रक्चर जो होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो 2 टाइप का होता है, दैट इज़ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डेफिनेशन अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। ओके, सो ही कंसिडर्ड द सेल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड वन, complexity of organisms, either they are unicellular or multicellular. Unicellular means a single cell, जिसमें सिंगल सेल हो। सो यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वो सिर्फ सिंगल सेल होंगे, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, ये क्या है, सिंगल सेल एनिमल्स है। ओके, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। और मल्टी सेल्युलर जो होंगे वो उसके अंदर एक से ज़्यादा सेल होंगे। सो दिस इज़ द सेकेंड criteria which was considered by the Whittaker. थर्ड क्राइटेरिया इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब उनके खाने का तरीका क्या है, खाना खुद बनाते हैं, फूड खुद बनाते हैं या किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे कि प्लांट्स का होता है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय दी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। सो दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। देन कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ फंगी। फंगी जो होते हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं। फंगी यानी कि जो जो हमारे जैसे कि ब्रेड के ऊपर जो लग जाता है वो फंगी होता है। तो दे आर सैप्रोफाइटिक इन नेचर। सैप्रोफाइटिक उसको कहते हैं जो एब्सॉर्ब करता है फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म, जो डिपेंडेंट होता है डेड ऑर्गेनिजम्स के, यानी कि जो डेड जो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाते हैं तो उनको खाने का काम, यानी कि वो फंगी जो है उनसे अपना फूड एब्जॉर्ब करता है। एंड थर्ड वन इज़ एनिमल्स। सो एनिमल्स आर बेसिकली हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर, मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन दी अदर्स फॉर दी फूड एंड इंजेस्टिव। फोर्थ वन, देयर लाइफ स्टाइल। सो लाइफ स्टाइल ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, जैसे कि प्लांट्स से हमको फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, बहुत सारे मेडिसिन मिलते हैं। सो मेडिसिन मिलते हैं, सो दैट इज़ वाई प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। एनिमल्स प्रोड्यूसर्स, अब ये अपना खाना भी खुद बनाते हैं। एनिमल्स आर कंज्यूमर, एनिमल्स कंज्यूम करते हैं किसको, प्रोड्यूसर्स को। एंड देन फंगी आर द डिकम्पोजर, यानी कि ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। सो फंगी जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। देन द लास्ट क्राइटेरिया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, the relationship between the the organisms like prokaryotic to eukaryotic and unicellular to multicellular. So these are the 5 criteria which were considered by the Whittaker while classifying the living organisms. So ये criteria जो है Whittaker ने consider किए थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए। So here are the few keywords, that is prokaryotic. अब prokaryotic cells जो होते हैं, cells that do not have a true nucleus और membrane bound organelles। ऐसा सेल जो, जैसे कि मैंने बताया कि 2 टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल वो हो गए जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, यानी कि न्यूक्लियस प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, यानी कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जनरली, जो सेल्स में ऑर्गेनेल्स होते हैं वो के उसके ऊपर एक कवरिंग होता है। तो लेकिन इसके अंदर जो रहेगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल रहेगा, उसमें जो ऑर्गेनेल्स यानी कि सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स है, उनके ऊपर जितने भी पार्ट्स अवेलेबल है उनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन का कवरिंग नहीं रहेगा। तो इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो रहेंगे जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, और जिनके ऑर्गेनल्स यानी कि सेल के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स है, वो जो ऑर्गन्स है वो मेम्ब्रेन उनके ऊपर नहीं होता, वो अनकवर्ड होते हैं। सेकेंड, यूकैरियोटिक्स आर दी सेल्स दैट कंटेन न्यूक्लियस, जिनके अंदर न्यूक्लियस होगा प्रॉपरली डेवलप, ऑर्गेनल्स हो गए एंड आर इनक्लोज बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट हो गए लाइक न्यूक्लियस एंड द ऑर्गेनल्स, मतलब सेल के अंदर जो भी ऑर्गन्स हो गए, तो वो ऑर्गन्स जो है
उसके ऊपर कवरिंग होंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इसका एग्जांपल है एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, थर्ड वन ऑटोट्रॉफिक। सो ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर फूड बाय ओन। ऑटोट्रॉफ जो होते हैं जैसे कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, इसके लिए वो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स अपना खाना अपना फूड खुद बनाएंगे, खुद प्रोड्यूस करेंगे, तो उनको कहेंगे हम ऑटोट्रॉफिक। देन सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक लाइक फंगी, दे एब्जॉर्ब्स फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि फंगी का जो काम होता है, जैसे फंगस जो ब्रेड के ऊपर लग जाता है फंगस, तो वो फंगी का काम क्या होता है, उस ऑर्गेनिक मैटर को डिके करना, यानी कि उसको ख़त्म करना। तो वो ख़त्म जब होता है, जब फंगी जो है अपना जो फूड है उसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है। सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइटिक इन नेचर। हेटेरोट्रॉपिक आर दोज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। जो अदर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, उनको कहते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक। So these are the few keywords which are very important. So student, please remember these keywords. Come to the Whittaker's method of classification of living organisms. First of all, living organisms. This is the Whittaker method of क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में विटेकर ने कैसे डिवाइड किया था, कैसे कैटेगराइज किया था, कैसे क्लासीफाई किया था, वो इस स्ट्रक्चर के इस हायरार्की से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हायरार्की। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब देखो यहाँ पर जो प्रोकैरियोट्स वो सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड हुए। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं, दैट इज़ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स जो होंगे उनके अंदर सेल्स जो होंगे, उस सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा और उसके सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। वाइल यूकैरियोट्स जो सेल होते हैं, यूकैरियोट वो सेल होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपरली डेवलप्ड होता है और जितने सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2 कैटेगरीज में यहाँ पर विटेकर ने क्या किया है, डिवाइड किया है। फर्दर प्रोकैरियोट्स आर ओनली अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। वो सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, यानी कि सिंगल सेल वाले होंगे, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, दीज आर दी एग्जाम्पल्स। तो प्रोकैरियोट्स होंगे वो भी यूनिसेल्युलर होंगे। देन दिस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैटेगराइज इनटू दी किंगडम मोनेरा। यानी कि प्रोकैरियोट्स यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल वाले जितने ऑर्गेनिजम्स है वो सारे यूनिसेल्युलर होंगे और यूनिसेल्युलर के साथ साथ उनको कौन से किंगडम में हम लोग डालेंगे, मोनेरा। सो विटेकर ने एक फर्स्ट किंगडम बनाया, दैट इज़ मोनेरा, जिसके अंदर सारे यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएगी। ओके, नाउ कम टू दी यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। अब यूकैरियोट्स जो सेल्स होते हैं जिनके अंदर प्रॉपरली न्यूक्लियस डेवलप्ड होता है और जिनके सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है, कवरिंग होता है। सो यूकैरियोट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मीन्स अ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर मीन्स मोर देन 1 सेल। ओके, देन further unicellular is divided into unicellular are categorized into the kingdom protista। अब सेकेंड किंगडम जो विटेकर ने इंट्रोड्यूस किया है वो क्या है, प्रोटिस्टा। सो यूनिसेल्युलर ही होंगे ये, लेकिन इनका सेल टाइप क्या होगा, यूकैरियोट होगा। सो ये यूनिसेल्युलर और ये यूनिसेल्युलर, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सो जैसे कि इनके किंगडम क्या है, अलग अलग है, लाइक मोनेरा, देन eukaryotes unicellular, then kingdom protista. Further come to the multicellular. So multicellular organisms are further divided into the 3 kingdoms, that is first kingdom is fungi. Fungi itself is a kingdom also.
सो फंगी में खास क्या बात है, सेल वॉल प्रेजेंट बट ऑर्गेनिजम्स कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब इसमें सेल वॉल यानी कि सेल का जो बाउंड्री जो होता है वो, या इस बाउंड्री जो होगा वो यहाँ पर इसमें अवेलेबल रहेगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस ये परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज अब्सेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, यानी कि ये ग्रीनिश नहीं होते। जनरली फंगी क्या होते हैं, ग्रीन नहीं होते, तो वो अपना फूड क्या ये, और इनका जो नेचर होता है वो सैप्रोफाइटिक होता है, यानी कि दे आर डिपेंड ऑन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जब डिके होता है तो उसके ऊपर जो है फंगस आ जाता है, वो फंगस जो है उसी के ऊपर क्या करता है, अपना फूड उसी से लेता है। दैट इज़ वाई दे कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके, सो दे आर कम अंडर द मल्टीसेल्युलर, और मल्टीसेल्युलर में जो किंगडम है, किंगडम थर्ड, दैट इज फंगी। किंगडम फोर, प्लांटी। अब प्लांटी में सारे प्लांट्स और वेजिटेबल्स जो होंगे इस किंगडम में क्लासीफाई होंगे। ओके, तो इसमें जनरली क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। देखो प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है एंड ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और ये जैसे कि प्लांट्स अपना फूड, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, दे आर मेकिंग देयर ओन फूड, और वो खुद का फूड भी बनाते हैं और उनके ऊपर कई कंज्यूमर जो है डिपेंडेंट भी, जैसे कि हम जो है फ्रूट्स भी खाते हैं जो उनको प्लांट से मिलते हैं। हम जो है कि अपना जो वेजिटेबल्स होते हैं वो भी हमको प्लांट से मिलते हैं। बहुत सारी मेडिसिनल जो मेडिसिन होती है वो भी हमको प्लांट से, उसके प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके मेडिसिन बनाते हैं। बहुत सारे केमिकल्स ऐसे मिलते हैं, तो हम डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर। सो लेकिन यहाँ पर किंगडम प्लांटी क्या है, जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, किस में, प्लांट्स में सेल वॉल होता है और वो कैटेगराइज होते हैं किंगडम प्लांटी में। फर्दर द लास्ट किंगडम ऑफ विटेकर्स मेथड इज किंगडम 5, दैट इज एनिमलिया। एनिमलिया में जितने भी एनिमल्स होंगे वो सारे इस कैटेगरी, इस किंगडम के अंदर डिवाइड हो गए, कैटेगराइज हो गए। ओके, और एक खास बात यहाँ पर टू बी नोट डाउन, दैट इज एनिमल सेल्स डोंट हैव अ सेल वॉल। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता, वाइल प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। ठीक है, सो दिस इज़ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ विटेकर। ये विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम है। फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा, सेकेंड किंगडम इज प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम इज फंगी, फोर्थ किंगडम इज प्लांटी एंड फिफ्थ किंगडम इज एनिमलिया। ठीक है, तो ये जनरली कैसा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर। Then these prokaryotes are divided into unicellular, then unicellular and included into the Monera kingdom, while eukaryotes are further divided into two categories, unicellular and multicellular. All the unicellular eukaryotes are come under the kingdom Protista, while multicellular having 3 kingdoms, that is fungi, plantae and animalia. So this is the best classification of living organism by the Robert Whittaker, which is widely considered and widely used. So let us discuss these kingdoms one by one. Let's start with the first kingdom, that is kingdom 1, Monera. Monera is the kingdom name. So in the kingdom Monera, all types of bacteria and blue green algae are included in the kingdom Monera. अब जितने भी किंगडम मोनेरा में जितने भी बैक्टीरियाज है वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। ब्लू ग्रीन algae आर आल्सो इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। हैव अ लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब ये यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक है जो ऑर्गेनिजम्स की जो किंगडम मोनेरा में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है उनका, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर। मतलब मोनेरा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होंगे वो सारे क्या होंगे, यूनिसेल्युलर, यानी कि सिंगल सेल वाले होंगे। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, दे मे बी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। ऑटोट्रॉपिक का हमने मतलब देखा कि ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, यानी कि दे आर प्रोड्यूसर।
सो इसमें ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, यानी कि किंगडम मोनेरा में सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ऑटोट्रॉपिक भी आ सकते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी आ सकते हैं। थर्ड वन, दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि किंगडम मोनेरा में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैटेगराइज होंगे सबसे पहले तो वो क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे, यानी कि उनका जो सेल्स होगा, उनका जो सेल होगा वो सेल क्या होगा, प्रोकैरियोटिक टाइप का होगा, यानी कि उसमें न्यूक्लियस वो प्रॉपरली वेल डेवलप नहीं होगा और उसके जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी क्या होंगे, वो भी कोटेड नहीं होंगे। ओके, so these are the three characteristics of kingdom Monera. Have a look at the organisms from the kingdom Monera. So these are the few organisms which were considered to be in the kingdom Monera, that is Clostridium tetani, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Legionella pneumoniae, Treponema pallidum, Vibrio cholerae, Salmonella typhi and Clostridium botulinum. So these are the few organisms which are come under the kingdom Monera, and some of them, most of them are bacteria. So remember the characteristic of kingdom Monera and the organisms come under the kingdom Monera. इसके जो स्ट्रक्चर है किंगडम मोनेरा के, जो जितने ऑर्गेनिजम्स है इसके स्ट्रक्चर आपको, जैसे कि इसका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, दिस वन इज द स्ट्रक्चर एंड दिस वन इज द क्लोस्ट्रीडियम टिटानी. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस देयर स्ट्रक्चर बिकॉज दे मे बी आस्क्ड इन द examination. Okay, so let's come to the second kingdom, that is kingdom Protista. This is the second kingdom of Robert Whittaker's classification. Okay, 5 kingdom system में से ये second kingdom है. Now come to the characteristics. Their characteristics of the characteristics of the प्रोटिस्टा किंगडम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैटेगराइज होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये रहेगी. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एनक्लोज इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. नाउ लुक एट दिस कैरेक्टरिस्टिक. प्रोटिस्टा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे दे आर सिंगल सेल, यानी कि वो क्या होंगे, यूनिसेल्युलर होंगे, विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनक्लोज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि उनका सेल टाइप हमको यहाँ शो कर रहा है कि वो यूकैरियोटिक टाइप का सेल होगा. कैसा होगा, यूकैरियोटिक टाइप का सेल होगा. किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल था, यहाँ पर यूकैरियोटिक टाइप का सेल होगा, यानी कि उसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस डेवलप होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी और जितने सेल ऑर्गेनेल होंगे वो कोटेड होंगे, यानी कि उनके ऊपर एक कवरिंग होगा. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, दे हैव स्यूडोपोडिया और हेयर लाइक सीलिया और वीप लाइक फ्लैगेला फॉर लोकोमोशन. हैव अ लुक एट द पिक्चर. अब जो ये सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हैव अ लुक एट द बॉडी स्ट्रक्चर हियर. यहाँ पर जो बॉडी पे कुछ पोर्शंस निकला है, लाइक यूग्लेना का अगर हम देखें तो ये एक पोर्शन यहाँ पर क्या हुआ है, बाहर निकला हुआ है. सो दिस पोर्शन इज़ यूज फॉर लोकोमोशन. जैसे कि ह्यूमंस, हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अगर हमको खुद जाना हो तो हम लोग अपने लेग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है. तो लोकोमोशन के लिए हमारे पास जो बॉडी पार्ट है वो लेग्स हैं, और कुछ एनिमल्स के पास भी लेग्स होते हैं. सो दीज आर द लोकोमोटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी. ये हमारे बॉडी का लोकोमोटिव पार्ट है. तो ऐसे सुडोपोडिया या तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया होता है, दिस इज़ द सीलिया. हेयर लाइक स्ट्रक्चर सुडोपोडिया यानी कि बॉडी के ऊपर थोड़ा सा पोर्च फॉर्म हो जाना, और फ्लैगेला लाइक दिस आर द लोकोमोटिव पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. ये टेम्पररीली कभी कभी उनके बॉडी में फॉर्म हो जाते हैं अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो इस चीज़ों का यूज़ करते हैं, दैट इज़ द सुडोपोडिया.
hair like cilia or whip like flagella. These are the temporary body parts of these living organisms of Protista kingdom. इनके पास जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स लोकोमोशन के लिए इन पार्ट्स का यूज़ करते हैं. ओके. फर्दर दे आर ऑटोट्रॉप्स अल्सो एंड हेटेरोट्रॉप्स. इसमें ऑटोट्रॉप्स भी है, लाइक एग्जांपल यूग्लेना वोल्वॉक्स विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट. अब वोल्वॉक्स देखो, हम यहाँ पर ग्रीन कलर का हम लोग देख सकते हैं. दिज आर दी ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, दैट इज़ वाई दे आर. अब ग्रीन कलर है यानी कि उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर है. यानी कि क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर भी होता है वो अपना फूड क्या करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना फूड फॉर्म कर सकता है. दैट इज़ वाई दे आर ऑटोट्रॉप्स. while heterotrophs are amoeba and paramecium. Look at them, they are not green in color, but they are, because that is why they are heterotrophs, means they are dependent on others for the food, amoeba and paramecium. So these are the organisms from kingdom Protista. Kingdom Protista के ये organisms है, उनकी characteristic हमने यहाँ पर देखी. Now come to the kingdom 3, that is fungi. So this is the third kingdom. Now come to the characteristic of the living organisms comes under the kingdom 3, fungi. First of all, first characteristic, these are non-green, means they are not a green organisms. मतलब इनमें साइटोप्लाज्म इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा. बिकॉज हमने जैसे स्टडी किया फंगी जो होते हैं वो क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक इन नेचर होते हैं. सो वो अपना फूड खुद बनाते नहीं, दे आर डिपेंड ऑन दी डेड ऑर्गेनिक मैटर. सेकेंड थिंग, दे आर यूकैरियोटिक. द सेल टाइप विल बी यूकैरियोटिक, मीन्स देर इज अ प्रॉपरली डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड द ऑर्गेनेल्स आर प्रॉपरली कोटेड. Heterotropic organisms, they are also heterotropic, means they are dependent on the other for the food. Second characteristic, most of them are saprotrophs. Saprotrophs क्यों है, because they feed upon the decaying organic matter. मतलब जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर ये क्या करते हैं, उससे अपना फूड क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन. चिटिन टाइप का एक शुगर होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ शुगर. तो इससे इसका इस ऑर्गेनिज्म के यानी कि फंगी का सेल वॉल किससे बना होता है, चिटिन नाम के शुगर से बना होता है. देन सम फंगी आर थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. अब कुछ फंगी क्या होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं. जैसे कि हम लोग ब्रेड के ऊपर देख सकते हैं, ब्रेड के ऊपर जो फंगस लगता है, या तो फिर हमारे घर में जो रोटी होती है, रोटी के ऊपर फंगस लग जाता है. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर्स. सो एग्जाम्पल्स, बेकर सिस्ट, एस्परजिलस, फंगस ऑन द कॉर्न, पेनिसिलियम एंड मशरूम्स. सो बेकर सिस्ट, एस्परजिलस, फंगस ऑन द कॉर्न, जो कॉर्न पे फंगस लग जाता है उसको क्या कहते हैं, एस्परजिलस. देन पेनिसिलियम एंड मशरूम्स. दो many system of classification are introduced, but Whittaker's 5 kingdom system is widely accepted. Have a look at the pictures of the fungi. So these are the different type of the fungi where this is Columella, sporangium, this part is called as sporangium. Apophysis, this part is called as apophysis. अलग अलग पार्ट के यहाँ पर नेमिंग दिया है. हाइफा, देन राइजॉइड्स विच आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्पोरेंजियोफोर विच इज़ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. सो दिज आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फंगी. और अलग अलग टाइप के फंगीज के स्ट्रक्चर, फंगी के इमेजेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है. सो दिस इज़ द थर्ड किंगडम फंगी विच कम अंडर द विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम. अब यहाँ पर जो फोर्थ किंगडम जो होगा वो क्या होगा, इट विल बी प्लांटी एंड द फिफ्थ किंगडम इज एनिमलिया. अब प्लांट बचे कौन से, प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो प्लांट्स के लिए जो किंगडम है वो क्या है, प्लांटी है. एंड देन एनिमल्स के लिए जो किंगडम है वो एनिमलिया. ठीक है. सो दिस इज द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ विटेकर. सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द किंगडम properly, their characteristics and their organisms structure also.
Okay, I hope you understood. So here we have finished with the Whittaker's five kingdom system. Okay, now come to the another classification, that is classification of microbes. Microbes are the microorganisms which we cannot see by the naked eyes. So let's have the classification of microbes. First of all, among the living organisms, microorganisms are largest in the number. मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें ज़्यादा नंबर्स में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. सो देर इज़ ऑल्सो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स. सो विथ रेफरेंस टू देयर साइज, माइक्रोब्स वो उनकी साइज से भी कैटेगराइज करते हैं उनको. हैव अ लुक एट देयर साइज. ये चीज़ याद रखनी है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ माइक्रोमीटर, विच इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय mm. 10⁻⁶. 10⁻⁶ means 10 to the power 6, and 1 meter is equals to 10 to the power 9 nanometer, which is indicated by the nanometer, that is nm. So have a look at the classification of microbes. So this is the hierarchy of classification of microorganisms. All the microorganisms are categorized by this pattern. So first of all, the microorganisms, the bunch of microorganisms, they are classified into two categories on the basis of their cell structure. उनके सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से दो कैटेगरीज यहाँ पर भी फॉर्म हो गए, दैट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स आर दोज whose cell does not have properly developed nucleus and the cell organelles are not covered with the plasma membrane, while the eukaryotes having the cells having the properly developed nucleus and the organelles are covered by the plasma membrane. So in the prokaryotes there are bacteria. All the bacteria are having the cell type prokaryotes, as we seen before. देन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स को फर्दर डिवाइड किया है डिफरेंट किंगडम्स में, दैट इज प्रोटिस्टा, फंगी एंड अल्गी. ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स. द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स on the basis of their cell structure. Then prokaryotes having the bacteria and eukaryotes having the protista, fungi and algae. Okay, so let's discuss them one by one. First of all, bacteria. जनरली बैक्टीरिया का जो साइज़ होगा वो 1 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर होगा. ठीक है, सॉरी मिलीमीटर, 1 mm यानी कि माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होगा. ओके, सो दिस इज द साइज ऑफ बैक्टीरिया. सो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, they are unicellular, independent and parasitic. They are also independent and parasitic also organisms. यानी कि वो यूनिसेल्युलर सिंगल सेल वाले एनिमल ऑर्गेनिजम्स होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, या तो पैरासाइटिक. पैरासाइटिक मीन्स डिपेंडेंट ऑन अदर, मतलब किसी और चीज़ के ऊपर जाकर के ग्रो होना. हम देखते हैं ना बहुत सारी चीज़ें. अब ये डिसीज़ जो बैक्टीरियल डिसीज़ जो होते हैं हमारी बॉडी में जब आते हैं, तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी का खुद का थोड़ी ना होता है. जो बैक्टीरिया बाहर से हमारी बॉडी में आता है, फिर वो हमारे सेल्स पे रिसाइड करता है, फिर वहाँ पर वो यानी कि वो जो रिसाइड करता है उसी को कहते हैं पैरासाइटिक, यानी कि किसी और के ऊपर जाकर के लग जाना. सो इस टाइप का ये ऑर्गेनिज्म रहेगा. समटाइम्स मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज. अब बैक्टीरियाज क्या फॉर्म करते हैं, कॉलोनीज फॉर्म करते हैं. जैसे हम घर बनाते हैं, तो ऐसे बैक्टीरियाज की भी कॉलोनीज होती है कि 1 by 1 वो क्या करते हैं, अपने जो प्रोडक्शन शुरू रखते हैं. आफ्टर दैट बैक्टीरियल सेल इज़ प्रोकैरियोटिक. जैसे कि हमने डिस्कस किया, प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल होगा, बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. वाई दे आर एब्सेंट? बिकॉज द सेल टाइप इज़ प्रोकैरियोटिक. दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिशन. अब देखो यहाँ पर फ्यूजन हमने सुना है कि दो चीज़ें एक में मिल करके एक बन जाना, उसको कहते हैं फ्यूजन. और फिशन किसको कहते हैं? फिशन में बाइनरी फिशन मीन्स एक चीज़ के दो टुकड़े हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड एज बाइनरी फिशन. प्रॉपरली
बीच में से दो टुकड़े हो जाना, तो वो जो रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया का, दे रिप्रोड्यूस बाय द सिंपल बाइनरी फिशन, यानी कि एक बैक्टीरिया के दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाते हैं। ओके। फोर्थ पॉइंट, इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया ग्रो विगरसली एंड कैन डबल देयर नंबर्स इन 20 मिनट्स। और इनका जो रिप्रोडक्शन जो होता है, अगर फेवरेबल कंडीशन इनको मिल गया तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि रेप्लिकेशन होता है, और 20 मिनट्स में क्या करते हैं वो अपने नंबर्स को, यानी कि अगर 10 बैक्टीरिया है तो 20 मिनट्स में वो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ओके। हैव अ लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का सबसे सिंपल एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस, जो मिल्क में होता है ना। मिल्क में एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो मिल्क में होता है। देन हियर आर द फ्यू एग्जांपल्स एंड देयर स्ट्रक्चर। कोकस, कोकस का स्ट्रक्चर ऐसा स्पेरिकल शेप रहेगा। देन कोकोबैसिलस, this is the structure of Coccobacillus. Then this is rod like structure, that is Bacillus. Then Vibrio, a comma shape, comma type में इसका structure रहेगा। Then Spirillum, Spirillum is the bacteria like this जिसका structure इस type में होता है, spring type में, that is why it is called as Spirillum. So these are the few bacteria which were listed here. Remember their characteristics and their structures also, which can be asked in the examination. Further, come to the next microorganism, that is protozoa. Their size will be approximately 200 micrometer. साइज को हमको क्या करना है, रिमेंबर कर रखना है, याद रखना है साइज को। तो प्रोटोजोआ जितने भी होंगे उनका साइज जो रहेगा वो 200 मिलीमीटर का होगा। सॉरी, again I told millimeter, it is micrometer. Okay, have a look at the characteristic. So protozoans are found in soil, fresh water and sea water. जनरली जो प्रोटोजोआ जो होते हैं, प्रोटोजोआ वो कहाँ फाउंड होते हैं, एक तो सॉइल में, या तो फ्रेश वाटर में, या तो सी वाटर में। सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स आर पैथोजेनिक। ओके, अब हमारी बॉडीज़ में भी जब ये प्रोटोजोआ एंटर हो जाते हैं तो वो पैथोजेनिक साबित होते हैं, यानी कि वो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, सो सम आर फाउंड इन ऑन दी अदर्स बॉडी ऑल्सो। दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विथ यूकैरियोटिक टाइप ऑफ द सेल, यानी कि इनका सेल टाइप क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा, यानी कि जो न्यूक्लियस होगा वो प्रॉपरली क्या होगा, डेवलप होगा, और सेल ऑर्गेनिल्स जो होंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे। देन दे आर यूनिसेल्युलर, यानी कि ये सिंगल सेल हो गए, क्या हो गए, सिंगल सेल हो गए। देन देर इज़ अ ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अमंग द प्रोटोजोन्स। अब देखो इनमें वेरिएशन कहाँ कहाँ पर है, ये इनका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें देर इज़ अ ग्रेट वेरिएशन इन द सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर जो होगा उसमें वेरिएशन होगा, यानी कि हर एक प्रोटोजोआ का सेल एक जैसा नहीं होगा, सेल जो है डिफरेंट होगा हर प्रोटोजोआ का। देन ऑर्गन्स, ऑर्गन भी जो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, जैसे कि हमने देखा सूडोफोडिया, देन फ्लैगेला, दीज आर दी ऑर्गन्स ऑफ द लोकोमोशन, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो ऑर्गन्स यूज़ होते हैं वो भी क्या होंगे, अलग होंगे। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि हमने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आएगा, या तो वो किसी के बॉडी पे रहेगा, या तो वो क्या करेगा, खुद जो कि अपना फूड खुद बनाएगा, ऐसा भी हो सकता है। मतलब वो सैप्रोफाइटिक तो नहीं होगा, हेटेरोट्रॉपिक हो सकता है। देन हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉप भी हो सकता है। सो दीज आर दी वेरिएशन इन द प्रोटोजोआ। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीज़न। अब ये क्या होता है, वहाँ पर जैसे बाइनरी फिशन हुआ था, फिशन में क्या हुआ था, एक बैक्टीरिया के दो हो गए थे, यहाँ पर क्या होगा, सेल डिवाइड होगा, यानी कि जो पर्टिकुलर सेल होगा उसका डिवीज़न होगा और दो ऑर्गेनिज्म एक से बन जाएंगे। अब इसके एग्जांपल से अमीबा, पैरामेशियम, यू आर वेरी फैमिलियर विद देम, मतलब हमको पता है कि अमीबा क्या होता है, पैरामेशियम, दिस आर द सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखो अमीबा पैरामेशियम जो होते हैं फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर, यानी कि ख़राब पानी में ये कहीं पर भी आपको अमीबा और पैरामेशियम
मिल जाएगी। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, अब इससे क्या होता है, इट कॉजेज अमीबाइसिस। अमीबाइसिस इट इज़ अ टाइप ऑफ डिसीज़, ये टाइप ऑफ डिसीज़ है जिसके सिम्टम्स होते हैं डायरिया या तो पेन इन द एब्डोमेन यानी कि पेट में दर्द होना। ये ख़राब पानी हमारी बॉडी में जाने की वजह से ये अमीबा क्या होता है, हमारी बॉडी में इंटर हो जाता है, जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। और इस ये कॉज करता है, क्या करता है, अमीबाइसिस, जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है, जिसकी वजह से पेट में दर्द हो सकता है। देन प्लाज्मोडियम वाइवाक्स विच कॉज मलेरिया। प्लाज्मोडियम वाइवाक्स टाइप का जो प्रोटोजोआ होता है उससे क्या हो सकता है, हमको मलेरिया हो सकता है। देन यूग्लेना विच इज़ ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। देखो ये क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। यूग्लेना जिस जो टाइप का जो प्रोटोजोआ है वो ऑटोट्रॉपिक है, यानी कि अपना फूड वो खुद बनाता है। अब लुक एट द पिक्चर्स। पैरामीशियम, अब देखो पैरामीशियम है और ये पैरामीशियम के जो बाहर है ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, ठीक है। इसकी इसकी वजह से वो क्या कर सकता है, अपनी जगह लोकोमोशन यानी कि अपनी जगह से दूसरी जगह जा सकता है। दिस इज़ द पैरामीशियम। इंटामीबा जो कॉज करता है अमीबाइसिस, जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है या तो पेट दर्द हो सकता है। सो ये अंडर द माइक्रोस्कोप उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। देन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम को अगर हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखें तो वो हमको यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा। सो दिज आर द प्रोटोजोआ अप्रॉक्सीमेटली, जिसका साइज होता है 200 माइक्रोमीटर। सो रिमेंबर दिस पॉइंट्स, रिमेंबर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ फंगी, जिसका अप्रॉक्सीमेटली साइज़ है 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। जनरली इनका साइज़ यहाँ पर दिया हुआ है। हैव अ लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक। ऑलरेडी हम लोग फंगी के बारे में बहुत सारी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर फाउंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये आपको फंगी कहाँ कहाँ पे मिलेगा, जैसे कि हमारे ब्रेड के ऊपर भी फंगस जो आता है वो भी फंगी होता है। घर में जो रोटी थोड़े दिन पड़े रहने दो, अगर वो ख़राब हो गई तो उसके ऊपर भी क्या हो जाता है, फंगस आ जाता है, विच इज़ ऑल्सो अ फंगी। और ये कहाँ पर मिल सकता है हमको, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर जो सड़ रहा है उसके ऊपर भी हमको ये मिल सकता है। देन डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स और प्लांट्स जो मरने के बाद उसके ऊपर क्या होता है, उनकी डेथ के बाद फंगस क्या हो जाता है उसके ऊपर आ जाता है। सो दिस इज़ द ये उसके हमको ये फंगी कहाँ पर देखने मिलेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, एज वी नो इनका जो सेल होता है वो उसके अंदर न्यूक्लियर जो होता है प्रॉपरली डेवलप्ड होता है और सेल ऑर्गेनिज्म भी प्रॉपरली डेवलप होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब उनका सेल कैसा टाइप का होगा, यूकैरियोटिक टाइप का होगा। सम आर यूनिसेल्युलर एंड अदर्स आर विजिबल विथ नेकेड आइज। अब कुछ जो होते हैं जैसे कि ब्रेड के ऊपर जो फंगी होता है, अगर वो ज़्यादा लग गया तो हमको वो हम नेकेड आई से उसको देख सकते हैं। और कुछ इसमें क्या है, यूनिसेल्युलर भी होते हैं। अब इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो सैप्रोट्रॉफिक इन नेचर, यानी कि इट एब्जॉर्ब्स देयर फूड फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस। देन दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली, यानी कि इसमें दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, बाय सेल डिवीज़न और बाय बडिंग। अब सेल डिवीज़न जो है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, सेल डिवीज़न, यानी कि एक सेल से दो सेल्स क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे बाय डिवीज़न ऑफ द सेल। देन बाय बडिंग, बडिंग जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जनरली जो ब्रेड के ऊपर जो फंगस होता है वो बडिंग यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उसका बडिंग से वो क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है। Examples are baker's yeast, candida, mushroom, and we have already discussed about the fungi also. Now, this is the Saccharomyces, which is the one type of fungi. Look at the structure. देखो उसका under the microscope we can see that. Okay, so this is about the fungi. Now, come to the another microorganisms, that is algae. Algae is having the approximate size of
10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। अलगी जो होता है, जैसे कि हम लोग तालाब वगैरह देखते हैं, लेक्स के ऊपर जो ग्रीनिश कलर का जो फॉर्म हो जाता है, उसको हम अलगी कहते हैं। और कहीं पर घर में अगर हमेशा वहाँ पर गीला होता है, तो ऐसी जगह पे भी हमको ग्रीनिश टाइप का जो लेयर फॉर्म, जिसको हम काई कहते हैं, जनरल लैंग्वेज में हम लोग काई कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अलगी। हैव अ लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक। दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक, वाई दे आर एक्वेटिक? एक्वेटिक मीन्स पानी में रहने वाले या तो पानी के करीब में रहने वाले। दीज आर दी, दैट इज़ वाई दे आर एक्वेटिक। सेल टाइप यूकैरियोटिक मीन्स प्रॉपरली डेवलप न्यूक्लियस। यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर होते हैं। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रॉपिक मीन्स दे आर ग्रीन इन कलर। जनरली अलगीज जो होते हैं वो ग्रीन कलर में होते हैं। और ग्रीन कलर किस वजह से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल पिगमेंट उनके अंदर होता है। तो ऑटोट्रॉपिक नेचर क्यों हो गया उनका? बिकॉज दे कैन मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से वो अपना क्या कर सकते हैं? फूड बना सकते हैं। Then photosynthesis is carried out with the help of chloroplast present in the cell. We already discussed. Their examples are chlorella and Chlamydomonas. These are the examples of the algae. Very few species of algae are unicellular. बहुत कम उसके species है जो unicellular. Most of them are multicellular and visible with the naked eyes. Have a look at the picture of algae. This is the microscopic view of the algae. Microscopic view of the algae. हाँ, have a look. यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि एक पानी का तालाब है. This is the lake and the on the upper surface of the water the greenish layer of the algae is formed. तो algae, that is why they are aquatic in nature, because वो कहाँ पर पड़ते हैं? पानी में, near the water. That is why they are aquatic in nature. So remember about them. So these are the algae. Now come to the next microorganism, viruses, which are very dangerous. Most of disease are caused by the viruses. Bacteria also cause disease, but viruses are different. So viruses are very teeny. Their size is approximately 10 nanometer. Look at here, nanometer, huh? 10 nanometer to 100 nanometer. Means we cannot see them by the naked eyes. So generally their characteristics, viruses are not considered as a living organisms. So वायरस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसिडर नहीं होता जनरली. और दे आर सेड टू बी ऑर्गेनिजम्स एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. यानी कि उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं कह सकते और नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते. इसके लिए रिमेंबर हमको ये रखना है कि वायरसेस आर नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दे आर स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी की एक ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें सारे वायरसेस की स्टडी होती है. फर्दर वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट. मतलब वो इतने छोटे थे, जैसे कि हमने उनका साइज़ यहाँ पर देखा 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर. दे आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर होते हैं. एंड कैन बी सीन ओनली विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. यानी कि हम लोग उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में ही देख सकते हैं, ऐसे हम लोग नहीं देख सकते. आफ्टर दैट दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल. दे आर इंडिपेंडेंट पार्टिकल. दे आर नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो दे आर इंडिपेंडेंट पार्टिकल होता है. एक पार्टिकल होता है इंडिपेंडेंट, अकेला. देन वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए. अब वायरस होता क्या है? वो एक डीएनए होता है. क्या होता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए आल्सो. सो वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए और आरएनए. या तो डीएनए का वो लॉन्ग मॉलिक्यूल होगा और या तो आरएनए का. अभी जनरली क्या होता है? ये प्रोटीन होता है ना. आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड. एंड कवर्ड बाय द प्रोटीन कोट. और उसके ऊपर क्या कोट होता है? प्रोटीन का कोट होता है. यानी कि वायरस क्या होता है? एक लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए या तो आरएनए एंड कवर्ड बाय द प्रोटीन कोट. और उसके ऊपर एक कवरिंग होता है प्रोटीन का.
वायरसेस सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट और एनिमल सेल्स। अब देखो इनका सर्वाइव कहाँ होते हैं ये जनरली सर्वाइव होते हैं या तो प्लांट्स के ऊपर जो लिविंग प्लांट है, या तो एनिमल्स जो लिविंग है उनके सेल्स के अंदर ये सर्वाइव करते हैं। एंड प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल। अब यहाँ पर जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल किसको कहेंगे? अगर एक वायरस ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है, आफ्टर एंटरिंग वो एंटर होने के बाद वो सेल्स के अंदर जाएगा। किस में जाएगा? सेल में जाएगा। अब जिस सेल में ये वायरस चला गया तो वह वो उस सेल को हम होस्ट सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? होस्ट सेल। तो वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है खुद का प्रोटीन होस्ट सेल के अंदर एंड क्रिएट देयर न्यूमरस रेप्लिका। अब जब उसको एक लिविंग सेल मिल जाता है तो वहाँ पर वो क्या करता है? रेप्लिकेशन, यानी कि एक से हज़ारों वायरस वहाँ पर क्या हो सकते हैं? बन सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन। और वो न्यूमरस रेप्लिका बनाता है, यानी कि अनगिनत रेप्लिकेशन उसका बनाता है बाय द यूजिंग द प्रोटीन। एंड देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल, और फिर उस सेल को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। एंड बिकम अ फ्री, फिर वो उस बॉडी में फ्री हो जाता है। दिस फ्री वायरसेस अगेन इफेक्ट न्यू सेल्स, फिर वो अनदर सेल्स को क्या करते हैं? अटैक करते हैं। इस टाइप से वो क्या करते हैं? सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर वायरसेस आर वेरी डेंजरस। Viruses cause many diseases to plants and animals. Most of animals and plants are में जो डिसीज़ होते हैं, यानी एनिमल्स और प्लांट्स में जो डिसीज़ होते हैं वो वायरस की वजह से होते हैं। जैसे कि हम लोग बहुत सारे वायरसेस हमको पता है। लाइक अभी जनरली जो चल रहा है, जो पैंडेमिक चल रहा है अभी कोरोना वायरस का, सो कोरोना इज़ ऑल्सो अ वायरस। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दैट दे आर वेरी डेंजरस. So this is all about the microorganisms and their classification. Remember one thing, viruses are not a living organisms. Okay. Further, some viruses that cause disease to the human. In your textbooks, only names are given over there. I am showing you pictures of these viruses also. This is the polio virus. Look at the structure. दिस इज़ द पोलियो वायरस. पोलियो इज़ द डिसीज़ जिसकी वजह से पैर क्या हो जाता है? वो पैर नैरो हो जाता है, बारीक होता जाता है. दैट इज़ द पोलियो. एवरीबडी नो पोलियो डोज जो होता है ना, इसके प्रिवेंशन के लिए होता है. देन दिस इज़ द इन्फ्लुएंजा वायरस विच इज़ ऑल्सो कॉज अ डिसीज़. देन HIV एड्स वायरस. दिस इज़ द वेरी डेंजरस वायरस विच ये क्या करता है? ये वाइट ब्लड सेल्स को क्या करता है? ये डिस्ट्रॉय करता है. HIV का लॉन्ग फॉर्म है ह्यूमन इम्यून वायरस, वाइल एड्स का जो लॉन्ग फॉर्म है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. सो इस वायरस से ये एड्स डिसीज़ होता है. फर्दर अदर वायरसेस दैट कॉज डिसीजेस टू एनिमल्स एंड प्लांट्स. अब ये एनिमल्स और प्लांट्स को भी कुछ वायरसेस क्या कर सकते हैं? अटैक कर सकते हैं, या तो उनको डिसीज़ पैदा कर सकते हैं. सो दीज आर द फ्यू वायरसेस. कैटल्स के अंदर जो पिकोरना वायरस जो होता है वो कैटल्स के ऊपर इफेक्ट करता है. लुक एट दी फिगर स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो. देन टोमेटो विल्ट वायरस जो टोमेटो के ऊपर होता है. देन टोबैको मोसाइक वायरस. लुक एट दी स्ट्रक्चर. सो दीज आर द फ्यू वायरसेस विच कॉज द डिसीज टू द plants and animals also. Have a look at the bacteriophage. Remember the structure. बैक्टीरिया, ये एक टाइप का बैक्टीरिया है जिसका स्ट्रक्चर हमारे एक्सरसाइज में पूछा गया है. बुक में नहीं है लेकिन पूछा ज़रूर गया है. सो लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज इज़ द बैक्टीरिया. लुक एट हियर. दिस इज़ द हेड ऑफ द बैक्टीरिया. ये क्या है? बैक्टीरिया का हेड है. दिस इज़ द कॉलर. दिस इज़ द कॉलर. ये जो जॉइंट दिख रहा है ये राउंड शेप में, ये कॉलर है. देन दिस इज़ द शीथ. ओके. तो जो ये राउंड जो बने हैं ये शीथ है. देन टेल फाइबर. इसके जो टेल्स है, यानी कि जो टेल्स हम लोग कह सकते हैं, ये सारे टेल्स फाइबर है. ठीक है. ओके. सो रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियोफेज. ओके. and remember the whole things we discussed today. So this is all about the chapter. Here we finished the chapter, and
on the next lecture we will discuss the exercise of the chapter. Okay, jazakallah. Assalamu alaikum.